જય સચન દિવ્યાબેન. हरे ऊजी दादाजी, हरे होजी दादाजी, तमारा विनती તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. हरे ऊजी प्यारा जी, हरे होजी प्याराजी, सहारा विना बीज उगतु नथी, सहारा विना बीज उगतु नथी. हरे ऊजी दादाजी, हरे होजी दादाजी, तमारा विना क्याय गूटतु नथी, तमारा વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. जगत को संगी जदुक, જગત કુસંગે જદુક, केवल सत्संगे ज सुख, केवल કેવલ સત્સંગે જ સુખ. दादाजी नु हसतो मुं, દાદાજીનું હસતું મોં, शमनी दर्शन थाता सुख, शमनी મળે દર્શન થાતા સુખ. हीरा मोती महाराजे, हीरा હીરા મોતી મહારાજી, समृद्ध सतिया विना डगरूधरतु नथी, समृद्ध सतिया વિના ડગલું ઠરતું નથી. हरे ऊजी दादाजी, હરે ऊजी दादाजी, तमारा विना क्याय गूटतु नथी, तमारा विना क्याय गूटतु नथी. दुनिया भर मालखो लागे, दुनिया भर मालखो लागे, सत्संग विना सुनो लागे, सत्संग विना सुनो लागे. बिरवो दिवस रात जागे, बिरवो दिवस रात जागे, ज्ञानी भवनी भावट वांगे, ज्ञानी भवनी भावट वांगे. रोको अतिक्रमणा जी, રોકો અતિ आत्म रमना विना क्याय रुचतु नथी, आत्म વિના કાંઈ રૂચતું નથી. हरे ऊजी दादाजी, हरे હરે હોજી દાદાજી, हरे ऊजी प्यारा जी, હરે હોજી પ્યારાજી. जय सच्चिदानंद. જય સચિદાન. નવ કલમો બોલો. એક મિનિટ, કોણ है उधर? Who's there? Wait, no? Okay. Okay, 1 2 1 2 करो. अक्षय काका नंबर 1.
હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પર જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય કે દુભવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Number 3, હે Shreya. દાદા ભગવાન. Number 3. એનો સાઉન્ડ નથી આવતો. ગો હેડ અક્ષિકા. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિ ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોળ ભાષા, તંતિલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોળ ભાષા, તંતિલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ, અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિ ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન તત્વ મૃત્યુ પામીનાનો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિ ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી દિવ્યાબેન ત્રિમંત્ર બોલાય. અક્ષય પ્રદીપ દાદા આવવાના હતા, આવ્યા નથી. ટ્રાય કરે છે ફોન. હા, ઓકે. હા, અને ના જવાબ તો દીપક આનંદ કરજો કે હું ત્યાં સુધી આ થોડું ચલાવી છું ગાડી. દિવ્યાબેન. હા. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. અરિહંતાનમ. નમો અરિહંતાનમ. નમો વજ્જાયાનમ. નમો બુદ્ધાનમ. નમો લોય ચવચાવનમ. નમો લોય સવસાહનમ. એચો પંચનમુકારો. એસો પંચનમુક્તારો. સવ પાવપનાચનો. સૌ પાવપનાશનો. મંગલમ ચ ચવ્વચમ. મંગલાણં ચ સૌએસ્મિં. પલ્લમ હવૈ મંગલમ. પરમં વૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ.
सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, श्रेया आपका साउंड है? ओके। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। ये दादा भगवान, मैं आगे सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। कोरल। ओके, दक्ष। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को छोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी प्रेरणा की निर्देशन रूप में आगे टूट जाए, मैं पढ़ाई से ढंग से करूँ, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमने आपके बच्चे मैं आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, दिल भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। ओके, ये 3 दिनों में डेली एक्टिविटीज में आत्मा प्रति प्रार्थना। ओके, दक्ष। हे आत्मा भगवान, आप अलग हो, दक्ष लगे। हे आत्मा भगवान, आप रियल है। हे आत्मा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी। जय सच्चिदानंद। ओरल। ओरल सेपरेशन प्रेयर। हे दादा भगवान, आप अलग हो तो हे दादा, हे श्री रत्न दादा भगवान, आप अलग तो रिलेटिव है। हे श्री रत्न दादा भगवान, आप परमानेंट हो तो टेम्पररी। विनय। જય સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કનિષ્ઠા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કનિષ્ઠા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, કનિષ્ઠા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। ओके, तो 3 दिन कैसा रहा? पेन और पेनलेस रहा डेली एक्टिविटीज में? करिश्मा, आपका तामिल में कैसा चला 3 दिन? कुछ किया? नहीं किया, राइट? क्या किया था? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, तमिल एग्जाम के लिए रिविजन किया था। कुछ लिखा, पढ़ा, लिखा? हाँ, किसको दिखाया? मैंने बोला था पप्पा को दिखाने का। मोनिका, हाँ टेल योर पप्पा, हाँ he must review it। तो पापा को आता है तमिल?
हाँ तो ओके, यू मस्ट रिव्यू और उसका सिग्नेचर करके हमको कॉपी भेजने का। करिश्मा, हाँ ओके। खुशी, आपको कैसा रहा? मुझे इस 3 दिन में सैटरडे को मैंने मम्मी की हेल्प नहीं की थी, उसमें पेन हुआ था। सारा दिन 24 आवर्स? नहीं, कितना? हाउ मेनी आवर्स? मुझे थोड़ी देर पेन हुआ था कि मैंने मम्मी की हेल्प नहीं की थी। नहीं, मैंने ऐसा पूछा कितना आवर्स मम्मी को हेल्प किया। मैंने हाफ एन आवर किया था। हाफ एन आवर तो बड़ी क्या, सारा 24 आवर्स की बात करते हैं आप। वो तो नॉर्मल है ना, एवरीडे करने का होता है। दूसरा कुछ किया? नहीं, आपको दुख दूसरे तो नहीं हुआ? आपको दुख नहीं होता है कि फर्क नहीं पड़ने वाले आपको, मोनिका? मैक्स तो आप बोलते हैं, कुछ करते नहीं आप। एक सैटरडे आधा घंटा मम्मी के साथ बात किया, हेल्प किया, और दूसरा क्या किया सारा दिन? स्टडी किया, मैथ नहीं किया। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? कुछ ऑब्जेक्टिव है क्या नहीं आपको, कि फेल होने का ऑब्जेक्टिव है? वो भी चलेगा, ऑब्जेक्टिव वो रखो, मजा करो। मोनिका, हाँ जी सच्चिदानंद, इन 3 दिनों में मुझे पेन 7 दिन नहीं किया, आधे में रह गया इसलिए हुआ था। और साथ ही टाइम टेबल प्रॉपरली नहीं बनाया और उसे फॉलो भी नहीं किया, तो इसमें मुझे पेन हुआ। कुछ ही टाइम टेबल बनाया अभी एग्जाम की आती है? नहीं। नहीं। व्हाट इज, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ में? खुशी, सोचो, हमको बताना। एक ऑब्जेक्टिव है फेल होने का है, झाड़ू मारने का है, कि पापा के साथ दुकान में जाने का है कल से? श्रेया तो गुम हो गए। दक्ष, हाँ, जैसे चीता दिन इतने दिन मुझे आज ये पेन हुआ कि मैंने आज मम्मी के अलावा और किसी की भी हेल्प नहीं करी। क्यों? अ, 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 इतना क्या बिजी था? नहीं, तो नहीं करने का था, वो तो इंटेंट नहीं था। ओ खुशी की जैसा है, इंटेंट नहीं था कुछ करने का। वेरी वेरी ब्रिलियंट लोग आप बच्चे लोग, कुछ इंटेंट ही नहीं है। पापा पापा मम्मी खाने देता है, स्कूल जाके आता है, मजा करते हैं। ओके, स्टडी के पे श्रेया, आपका कैसा है? इन दिन में मैंने मैथ्स और हिंदी का कोई रिवीजन नहीं किया था, उसमें मुझको दुख हुआ था। नहीं, डेली एक्टिविटीज में कैसा रहा 3 दिन? एक्सरसाइज नहीं किया था। कैसा? क्यों, टाइम नहीं था? इंटेंट नहीं था करने का, छुट्टी है? आगे हम्म? आलस आ इंटेंट गए। इंटेंट नहीं था, ऐसे बोलो, डोंट से आलस। नो इंटेंशन, जैसे खुशी की जैसा, ये सब खुशी के कंपनी में जाओगे तो मजा आएगा। ओके खुशी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड। आपको गोल क्या है हमको प्लीज बताना, नहीं तो आपको पापा को पूछना पड़ेगा कि खुशी का गोल क्या है। ओके ओके, एग्जाम किसने स्टडी किया था ये 3 दिन होम घर पे? कि नहीं ने किसी ने नहीं किया? हाथ नहीं दिखता है हमको। और ये एक एकाग्र चिक करके किया था कि ये भूल गया सब? क्या था? किसने किया? यार, असीम जयजयकार किसने किया था?
करिश्मा तो नहीं करती है, उसको तो उसका तो गोल नहीं, कुछ है ही नहीं। खुशी, आप किसने सुना आपने किया था? तीनों दिन किया था? और सैटरडे तो आपने स्टडी नहीं किया, संडे ने स्टडी किया, मंडे किया था? आज नहीं किया था, मैं संडे को ही किया था। संडे संडे क्या स्टडी किया था? हाँ, साइंस। क्या क्यों, क्या हो गया था? क्या इंटेंट था संडे स्टडी करना? क्या स्टडी में किया था? हाँ, संडे में क्या किया था? साइंस में, हम्म? साइंस की स्टडी की थी। बस उतना ही किया? कितना घंटा किया था? 15 मिनट? नहीं, 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा। बस बहुत हो गया। Saturday, Sunday, you studied 1 hour. Congratulations. Very good. Good job. That's what life is, ना? 1 घंटा में पढ़ेगा तो सब अच्छा हो जाएगा। ओके, अभी क्या करने का था? ओके, क्या क्या आपका 3 दिन में कुछ कुशंग पकड़ा आपने? मोनिका? इन 3 दिनों में मैं पढ़ाई में मुझे डिस्ट्रैक्शन हुए थे कि मेरा मन कह रहा था कि ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो। तो उस समय मैंने क्वेश्चन को पकड़ा और Why do you need break? मैं जब भी पढ़ाई बैठती हूँ, आई कॉन्सेंट्रेटेड 10 मिनट्स में एकाग्र रहकर पढ़ाई करती हूँ और बाद में 5 मिनट्स ब्रेक लेती हूँ ये और कौन सा वापस जाति? स्कूल इसलिए में वो 10 मिनट की बाद ब्रेक देते हैं? नहीं नहीं। तो यू आर नॉट सीरियस? हम्म, एटलीस्ट 1 hours, 1 घंटा तो कॉन्सेंट्रेट करके करने के बाद में ब्रेक ले सकते हैं। स्कूल में एक पीरियड का टाइम क्या होता है? 45 मिनट्स, 1 hour। श्रेया, क्लास कितना होता है? दक्ष, क्या कोई जवाब क्या नहीं देते? दादा आपकी आवाज स्टक हो रही है। आवाज कट Oh. हो रही? ओके, आई डोंट नो व्हाई। ओके, स्कूल में क्लास कितना आवर्स का होता है? 45 मिनट्स। हाँ, एटलीस्ट 45 मिनट तो बैठ सकते हैं ना, बाद में 10 मिनट ब्रेक कर सकते हैं ना। हाँ। सो आप, मैंने कहा यू नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग, 10 मिनट में तो यू नो इंटरेस्ट। ओके, खुशी, आपका तो कुछ सब मालूम पड़ गया। दक्ष? सच्ची याद है मुझे, इतने दिन में 2 दिन ये कुसंग हुआ, संडे और मंडे को, कि मुझे पतंग उड़ानी है। पर ज्यादा मैंने मम्मी से एक बार पूछा था और मैंने पतंग उड़ाने के पहले 1.5 आवर्स मम्मी को पढ़ाई करके दी थी और उसके बाद 1.5 आवर्स पढ़ाई करके दी थी। ये करिश्मा किधर गुम हो जाती है? और आज 2 आवर्स, और आज वो आप लेने के लिए। और दादा आज पतंग उड़ाने के बाद मैंने 2 आवर्स एक्स्ट्रा स्टडी करके दी। आओ, वेरी गुड, पतंग था। श्रेया, आपको कुछ समझ नहीं है? नहीं, वो ये सैटरडे और आज संडे में नहीं थी, तो सैटरडे और मंडे को मुझको मैथ्स करना था। तो फिर मेरा मन कहता था कि गुजराती कर लूँ, उसकी एग्जाम है, और फिर मैं साइंस करने लग गई। मैथ्स का रिवीजन मैंने किया ही नहीं। नहीं, वो तो that's your choice, it's not a big deal. ओके ओके, तो क्या अपना गोल क्या है? कुछ करने का है कि नहीं? देखो, सैटरडे संडे यू हैव टू गिव योर टाइम टेबल। हम नहीं बोलता है कि मेक सैटरडे संडे सेम एज डेली लाइफ, ओके? इट इज नॉट लाइक दैट।
मालूम पड़ा आपको? पर ये तो स्केड्यूल कि हमको 2-3 घंटा पढ़ने का नहीं करने का चलेगा। सैटरडे काइट फ्लाइंग था, संडे काइट फ्लाइंग, दैट्स ओके। ये तो स्केड्यूल के करने का था कि नहीं करने, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव होना बोलता टाइम टेबल। ओके, कॉलम नंबर 1, 2, 3 में, कॉलम नंबर 1 में क्या भूल आपके हो मिल सकती है? ओ, आज तो भूल गया मैं, टीचर प्रदीप दादा 2 टीचर है आज। दादा श्रेया, मैं हूँ टीचर। आर यू रेडी दक्ष? हाँ। एक मिनट, श्रेया आर यू रेडी? श्रेया, इसको बोलो, कोई बोलो श्रेया। जय सच्चिदानंद। एक मिनट, श्रेया, कैन यू हियर मी? प्रदीप दादा का सुनाई देता है? हाँ जी। श्रेया को नहीं सुनाई देता है? ओके, दक्ष आप टीचर है, आप दक्ष टीचर है, आपको पढ़ाएगा प्रदीप दादा कुसंग जय के बारे में। जय सच्चिदानंद। दादा ने हमें उस दिन ये बताया था। हाँ, अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त कई प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के दोस्त ऐसे दोस्त चुनना चाहिए जो पढ़ाई में अच्छे हो। हाँ, ऐसे दोस्त नहीं चुनना चाहिए जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, जो कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं और जब टीचर पढ़ा रही है जब बातें करते हैं। दूसरे प्रकार के दोस्त ऐसे दोस्त जो चरित्र या में कुछ अच्छे हैं। हाँ, दूसरे प्रकार के दोस्त ऐसे दोस्त जो चरित्र या में बहुत अच्छे हो और जो सभी को हेल्प करते हैं और जिनका निश्चय है या अच्छे हैं। ऐसे दोस्त नहीं चुनना चाहिए जिनका लक्ष्य निश्चित नहीं है और जो बुरे तो दक्ष आप कल अच्छी तरह से पढ़, 2-3 दफा पढ़ के बोलने का। ओके, कल बराबर पक्का करके। श्रेया, नो साउंड। नो साउंड। ओके, तो पहली कलम में से आपका क्या मिस्टेक मिल सकती है? खुशी, हमारी वाणी से और हमारे मन वचन कार्य से सामने वाले को दुख हो, अहम डूबा हो उनका। ओके, वेरी गुड। नंबर 2 में से बात नहीं सुनाई देता है। श्रेया, ओके। मोनिका, नंबर 2 में हमें
धर्म को विनय देना है, सभी धर्म को विनय करना है। कैसे करेगा आप? किसी का धर्म को कैसे विनय करेगा? सबको रिस्पेक्ट देने का है। हाँ, और तीसरे में क्या होता है? हमारे टीचर्स को और हमारे गुरु को कब लघुत्तम में रहना है, उनके मिस्टेक क्या मिलता है वो करने का। अवर्णवाद अपराध अभिनय करते हैं तो मिस्टेक मिलते हैं, वो मिस्टेक है। ओके, नंबर 4 में क्या मिल सकता है? इसको या मालूम है जी? हम हमारे विचार से हम उनको अभाव करते हैं, तिरस्कार, अभाव और तिरस्कार। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रदीप दादा, थोड़ा टाइम में बताओ कि अभय तिरस्कार कैसे पकड़ा जाता है? भाव तिरस्कार ये जो किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसके प्रति हमें भाव नहीं आता है, जैसे मतलब कि वो जो अंदर से उनके प्रति जो लागणी होनी चाहिए होता है, लोगों को देख के हमारा अंदर से उनका हमारा परिणाम नेगेटिव हो जाता है, बराबर। और तिरस्कार ये होता है कि हमारे से जब आदमी को ऐसा लगता है कि मैं उनसे आगे हूँ, बड़ा हूँ, अच्छा हूँ, तब ये जो अपने से जो लोग नीचा समझते हैं ना मुझे, उनके प्रति तिरस्कार भाव आता है। तो वो जो तिरस्कार भाव है वो बहुत दुख लाने वाली चीज है। इसीलिए हमें समझो कोई कोई टीचर ने या समझो कि आपकी मम्मी ने भी कुछ ऐसा व्यवहार किया तो उनके प्रति अभाव आ जाएगा। कैसे आता है? तो क्या आपने कुछ बोला और उन्होंने आपकी बात रिजेक्ट कर दिया, और तो आपको मन में ऐसा हो जाएगा यार हर बार मैं बोलती हूँ तब मेरी मम्मी ऐसी ही करती है, तो उनके प्रति अभाव आ जाता है। हम समझ मतलब भाव नहीं आना, प्रेम नहीं आना, ऐसा बोला जाता है। मालूम पड़ा? तो मोनिका, खुशी आपको कुछ बोलती है तो आपको क्या रिएक्शन होता है? अभय तिरस्कार होता है? होता है। खुशी आपको होता है? क्या? हमने अभी कुछ बोला आपको, मेरे पे अभय तिरस्कार आ गया? नहीं। क्यों? क्यों? कोई हमारा इंसल्ट करता है तो उनके प्रति अभाव आ जाता है। कोई डांटी देता है तो क्या होता है प्रदीप दादा? है? कोई डांटी देता है तो? हाँ, डांट ही देता है तभी उनके प्रति जवाब दो, उनका नाम नहीं दे रहा है, वो बराबर आदमी नहीं है, वो व्यक्ति बराबर नहीं है। और तिरस्कार तो बहुत डेंजर है, वो बहुत नुकसान करता है। तिरस्कार से तो खूब नुकसान होता है, लक्ष्मी भी नहीं मिलती है और इंसान को बहुत दुख पड़ता है। इसलिए तिरस्कार से बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक जीव के अंदर भगवान होता है, जिसे हम उनको शुद्धात्मा बोलते हैं, और दूसरा हर एक जीव है वो उनका कर्मों के हिसाब से उनका जीवन है। हमें उसके साथ कैसे डील करना वो हमें सीखना चाहिए, लेकिन उसको जो छिट छिट करते हैं ना, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए उनको। अभाव तो बहुत बातों बातों में आता रहता है। समझो कि अगर आपकी कोई ने बात बराबर नहीं सुनी, समझो उन्होंने फ्रेंड्स को बोला कि मुझे तुम ये टाइम पे किताब, मुझे ये किताब देना वो देना, तो उन्होंने दी होगी लेकिन वो नहीं देते तो उनके प्रति अभाव हो जाता है, उनका नाम बराबर काम बराबर नहीं है। मैं जब देता हूँ, ये मांगती है तो मैं देती हूँ, और ये जब मैं कुछ बोलती हूँ तो ऐसा करती है। तो अभाव तो छोटे छोटे बातों में भी आदमी को आ जाता है, इंसान को। तो अभाव और तिरस्कार में क्या फर्क है, कुछ मालूम पड़ा? बहुत बड़ा फर्क है। तिरस्कार तो जबरदस्त हिंसा है, इसलिए तिरस्कार से बहुत ध्यान रखने का। तो तिरस्कार कब होता है?
और जब आदमी वो खुद को अपने आप को बड़ा समझता है ना, तो वो छोटे आदमी हो, कम बुद्धि वाला हो, वो दिखने में ऐसा हो, फाइनेंशियली ऐसा हो, नॉलेज में ऐसा हो, बाय बर्थ ऐसा हो, तो अपने को एक ऐसा ईगो आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो फिर वो उनकी कोई वैल्यू नहीं करता है, वो उसके साथ बहुत रफ बिहेव करता है। इसलिए तिरस्कार तो बहुत डेंजर चीज है, इसमें तो बहुत नुकसान होता है इंसान को। लेकिन वो पहले के टाइम में होता था, लेकिन दादा भगवान ने बताया कि अभी की जो जनरेशन है उसमें भी तिरस्कार भाव बहुत कम हो गया है। इसीलिए तो ये पूरे हिंदुस्तान में इतनी सब लक्ष्मी की बोलबाला वो इतनी जाओ जलाली दिखती है। जो छोटे आदमी होते हैं उनके प्रति बहुत तिरस्कार होता है। जो नौकरी करता है, जो सामान्य कुल में जन्म लिया होता है, जिसके पास पढ़ाई पैसा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति जब आदमी बड़ा हो जाता है ना, तो वो अपने आप में ऐसा ईगो आ जाता है, तो वो फिर दूसरे को प्रति बहुत तिरस्कार भाव करता है, बहुत रफ बिहेव करता है। तो प्रदीप दादा, जो कभी बोलते हैं कि टीचर टीचर अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ाया, वो किस में जाता है? वो अभाव में जाता है, और फिर उससे आगे वो तिरस्कार नहीं होता है। तिरस्कार मीना उससे क्लास में जाना ही नहीं, फिर वो पढ़ा हुआ तो उनको पूरे अटेंड ही नहीं करने का, उसके ध्यान ही नहीं देने का, वो तिरस्कार भाव होता है। वो कुछ अच्छा बोले तो अभी उसको रिजेक्ट करता है, रिस्पेक्ट करे तो अभी रिजेक्ट कर देता है, अच्छी तरह से पढ़ता नहीं है, वो पूरे हर तरफ से उनके प्रति नेगेटिव बिहेव होता है। तो ये स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो वो तिरस्कार होता है कि क्या होता है? वो स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आता है तो खुद का नुकसान है। वो तो हर एक स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ता है उनको ध्यान में रखना चाहिए कि पढ़ाई तो अभी ये मेरी उम्र में पढ़ाई ही मेरी लाइफ है। अगर मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मुझे तकलीफ होगी। इसलिए पढ़ाई में तो सिंसियर रहना चाहिए, फिर बाद में जो रिजल्ट आया वो। लेकिन स्टूडेंट्स लाइफ में तो पूरे अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई से शाब्दिक ज्ञान होता है, खुद का मानसिक डेवलपमेंट भी होता है, और हर तरफ से उनको फायदा ही फायदा होता है। तो प्रदीप दादा, मोनिका दीदी का प्रॉब्लम है, और 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाद में ब्रेक लेती। वो 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 इसको इलाज क्या करना है? बराबर समझाया नहीं, मुझे सुना ही नहीं दिया। मोनिका बोलो। हाँ, मैं 10 मिनट कॉन्सेंट्रेटेडली पढ़ाई करती हूँ, बाद में वापस 5 मिनट ब्रेक लेती हूँ, और फिर से 10 मिनट पढ़ाई करती हूँ और वापस 5 मिनट ब्रेक लेती हूँ। तो उसमें क्या जानना है आपको? अम, मुझे इससे ये ज्यादा पता चलता है मेरी मेमोरी कितनी शार्प है, वो इससे पता चलता है। हाँ, जो आपने बोला, मेरी जो समझ में आया वो मैं बताता हूँ आपको, कि 10 मिनट पढ़ने के बाद जो फिर वो वो जो अंदर जो है चलता है ना माइंड में, तो फिर उसमें हाँ, कितना याद रहा कितना वो नहीं रहा वो पता चलता है इससे। हाँ, और ज्यादा तक तो हर एक स्टूडेंट्स को उनको जैसे सिस्टम पता चले, तो कोई बार कोई स्टूडेंट तो पेन और लिख भी देता है कि मैंने क्या पढ़ा, वो फिर बाद में वो लिख देता है, फिर बाद में खुद चेक करता है। हमारे समय में ऐसी सिस्टम थी। अगर दूसरी एक सिस्टम ऐसी थी कि जो मैं पढ़ाई करता हूँ तो फिर वो सामने मैंने जो पढ़ा है तो मेरे सामने दूसरे जो मेरी मदर है या मेरा ब्रदर जो भी है, वो उसको मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक रीडिंग किया है, और मैं बोलता हूँ आप देख लो मेरी कहाँ कहाँ गलती होती है। तो फिर वो फट 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 वो बोलता है, तो उसमें से वो पता चल जाता है कि मेरी कहाँ कहाँ मेरी कमजोरी है, कहाँ मुझे याद नहीं रहा, वो पता चल जाता है। वो अच्छे स्टूडेंट बनने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसमें हर स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से वो प्रयोग में जाना चाहिए। वो बहुत अच्छी चीज है ये। हमारे समय में ऐसा चलता था, अभी तो मुझे पता नहीं है कि कैसा है सब।
नहीं वो दूसरा तो एक सच है, ये तो प्रदीप दादा वो तो है ना, हमारे समाज में भी है। जब हम पढ़ते थे तो देखते हैं हम कितना पढ़ा, कुछ याद किया, और वो तो करते हो, सेल्फ एग्जामिनेशन होना ही मांगता है ना। हाँ, वो 100% जो उसको अच्छा स्टूडेंट बनना है उनके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा एक सिस्टम रजनी भाई साहब हमारे अपने समय में था कि जब वो स्टूडेंट जब पढ़ता है ना, पूरा एक पेज पढ़ जाता है, तो फिर बाद में वो क्रॉस क्वेश्चन निकालता था कि इस पढ़ने पर कितने में क्वेश्चन निकालता और उनका जवाब कैसे लिखने का। तो टीचर कोई भी कॉर्नर से उसको पूछे ना, तो वो जवाब लिख सकता था। ऐसी सिस्टम वो टीचर हमको सिखाते थे उस टाइम पे कि आपको कैसे स्टडी करना है। लेकिन आज की सिस्टम पता नहीं है अपने को। अभी तो स्टडीज में बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है। वो वो खुद के लिए बहुत नुकसान है ये। देखो, जब तक मेरी समझ है तब तक कोई भी उम्र हो, लेकिन इंसान को स्टडी का प्रैक्टिस रखने जैसी है, क्योंकि उससे शब्द ज्ञान मिलता है, उनका विजन डेवलप होता है, उनकी मेमोरी शार्प होती है, उसको कोई ना कोई ऐसा उसका डेवलपमेंट होता जाता है। लेकिन जो सही मायने में उनका जो अच्छी पुस्तक हो, तो बाकी उनका डेवलपमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि कोई बात समझ में नहीं आएगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए स्टडी तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं आपने बताया ठीक है, अभी हम भी स्टडी करते हैं, और दादा का ज्ञान, लिटरेचर हम अभी भी स्टडी करते हैं। तो वो समझ में तो नहीं आया। मैं बोलता हूँ अभी भी हम सब, मैं भी अभी स्टडी करता हूँ। जो इंसान है उनको स्टडी करना चाहिए। उनको जो रास्ते पे चलना है वो रास्ते पे उनको स्टडी करना चाहिए। इसमें कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी की बात करता हूं मैं। जो नेगेटिव वाली बात है उसमें तो कोई करने का मतलब ही नहीं। लेकिन देश, समाज और खुद के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये ज्ञान होते होते उनकी डेवलपमेंट होती है, तब वो ज्ञानी पुरुष की बात को भी समझ सकेगा, नहीं तो उनको कोई समझ में नहीं आएगा। वेरी इसलिए गुड, बहुत जरूरी है, अभ्यास बहुत जरूरी है। वेरी गुड। ओके बच्चों लोग, आई होप यू गेट द मैसेज, स्पेशली चिनाई, you need to buckle down। कार में ड्राइव करते तो सब बच्चों को कि डोंट वेस्ट टाइम। आपको जिस लाइन में इंटरेस्ट है उसमें आप अभ्यास चालू ही रखो। पूरा समय का जो भी जितना भी समय मिले वो हमारे खुद के लिए इन्वेस्ट करो, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। ओके बच्चों लोग, हाँ, आई होप यू गेट सम मैसेज। मोनिका, हाँ खुशी, दक्ष, Taxiba, Shreya. Shreya, I hope your sound is working tomorrow, okay? Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।